So this match now between the winners of the first match, that is Shan Strikers and Ganpati Warriors, Darbandura. Oh, what a lovely shot from Sahil. Catch dropped. No matter, it was a difficult catch. A lovely strike from Sahil of the very first ball. Wonderful cricketer, wonderful player, and aggressive right from the start. You felt as if this catch could have been taken, but when you are running so much and sometimes you have to watch the ball, it was slightly above his reach. Once again, this is a good start. Boundary now, pivoting himself and swing down the fine leg region for 4 runs. Score moves on to 10. This is in the air, not timed it well in the air, and he's dropped. Oh my God, almost close to 2 catches are being dropped. One was a difficult one, this was not that difficult. This should have been taken. Sahil gave them a good start, and aggressive batsman that he is, such catches of this batsman should have been taken. Oh, this is even bigger, mighty, great hitting. If you've not seen many sixes in the first 2 matches, then definitely now the sun is hitting up the surface and also the outfield. In the air, the humidity is more, and now it's going for sixes. This is wide signal here. What a wonderful first over to start the proceedings here for Ganpati Warriors, Darbandura. Even Shan Strikers would not have hoped for such a start. 2 sixes and a boundary in the very first over. Still balls left. This time. Oh, that's a poor throw, but luckily backup was there. Confidence level of the fielder looking slightly low here because he dropped that catch of Sahil, and Sahil now comes on strike after taking the single. Ramdas and Sahil, 1-6 each for both of them. This time played it straight. The fielder trying to cover it. Very nicely fielded. They are going for the second run. This is a big part of the ground, and 2 runs taken quite easily. This is a very expensive first over here for Shan Strikers. After completion of 1, the score is 21 without loss. In comes to bowl the second over is Sanjot. This is in the air. This should be a catch. Fielder from square leg takes it easily.
just went high and didn't get the elevation and distance. So first wicket going down, Ramdas perishes first wicket for the bowler Sanjot. So Amit Naik. This is might be a second catch of two balls. So he drops it. Drops it. Two chances given to Sahil. Is going to be Sahil's day because he's also having a bright smile on his face, understanding that not difficult catches those two. Amit has been in stunning form lately. Can he continue his good form? This is once again in the air. This might be easy catch. He goes out without troubling the scorers. 2 wickets in this over. Lovely bowling from Sanjot. 22 for 2. This is once again he intended to go in the mid-wicket region, getting a top edge, the bottom edge in fact, and going down to the long on region for 2 runs. He played that quite early. That's the reason why it got that bottom edge of the bat. Score moves on to 24. 2 wickets in this over and just 3 runs. A good comeback here from Shan Strikers through Sanjot. This is in the air. This will be easy catch. And he's not third time lucky. Not lucky third time. Catch taken by the fielder at long on region. And second wicket going down. So, in fact, third wicket going down. 3 wickets in the same over by Sanjot. So cricket is such a game where it changes within the complexion of 1 over. The first over, it was totally going in favor of Ganapati Warriors. Darbanoda with 21 runs coming. And now 3 wickets have fallen and just 3 runs added. In comes Vijay. So Ramesh and Vijay, both the batsmen quite new onto the wicket, not even faced a single delivery. This time very nicely played, finding the gap on the offside through that switch hit, and 4 runs. Ended this over on a high note already. This over definitely going in favor of the bowling side. Shan Strikers after completion of 2. The score is 28 for the loss of 3.
So new batsman, new bowler Ishwar Vijay is the new batsman who is facing his first ball of this innings. Man of the match in the previous encounter, Ishwar, left arm medium pace bowling. This is in the air. What a easy wicket given away. That was a full toss ball down the leg side. Should have put away anywhere. He gets a top edge and fourth wicket going down. So wickets are falling more quickly than the runs are coming from the bat. Two batsmen. This is the second batsman Vijay which is going down on duck without troubling the scorers. This time an outside edge should be just a single. Score moves on to 29. This is very nicely played. This is a very good shot, but in the air, fielder going after it. As goes for 6 runs. He tried very hard to take that catch, but ball just bounced on his hard part of the palm and going out for 6 runs. A good shot here from the bat of Ramesh. So 2 balls only faced by Ramesh. One getting him a boundary, second one 6. So he's going the aggressive way. Score moves on to 35. Just the third over in progress. The problem is the wickets that have fallen down. If another 1 or 2 wickets fallen down, then it's difficult for them to take the advantage of the 4th or 5th bowler. This is a lovely shot. He looks to be in form. No ball also declared here by umpire Nilesh Naik. Score moves on to 40. And a free hit as well. So man of the match in the previous encounter. Just bowled 3 deliveries, although he has taken a wicket. But 12 runs have come of the first 3 balls. Still 3 balls left in this third over. Slightly expensive now. And Ramesh is not bothered about whether wickets are lost. He is playing his natural game. That's also a good thing, not a bad thing. If the ball is in your slot, you are confident enough, go for it. This hit in time. He didn't time it well. Are they going for the second run? Even the fielders didn't go for the catch, understanding that they are going to go for 2 runs and another no ball. Another no ball here. So another no ball signaled here. Another free hit. Costly over. Once again a single taken. This free hit has costed just 1 run already. But 2 free hits had been given by the bowler. Bowling from around the wicket. So you can see one man of the match performance in the previous encounter. And now bowling slightly wavered. You have to be consistent enough in this game of cricket. This time played nicely in the covers region for just
Single. This single takes the score to 45. Very nicely bowled. Asking for wide. He went across as a switch hit. Bowler was very smart. When you go for the switch hit as a right-hander, both sides become offside. Good umpiring here from umpire Nilesh Naik. Dot ball to finish over number 3. The score is 45. 45 रन और बॉलिंग मार्क पर संजोत. ओवर पिच गेंद, इस बार बल्ला जोरदार घुमाया लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं. चौथे ओवर के शुरुआत संजोत गेंदबाजी करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्क पर. 2 बल्लेबाज है मैदान पर. मयूर 2 पर व्यक्तिगत बल्लेबाजी करते हुए और उनका साथ देते हुए 2 चौके 1 छक्का रमेश. अच्छी गेंद, इस बार लोअर फुल टॉस गेंद को ड्राइव किया. इस बार ऑफसाइड पर लॉन्ग बाउंड्री पर फील्डर 1 रन तेजी के साथ 46 पर पहुंचा. इस सिंगल के साथ एक अच्छा स्कोर शुरू जो कि मैदान पर दिखाई देता हुआ. गणपति वॉरियर्स धारबांदोड़ा क्रिकेट टीम की ओर से टॉस जीतकर मैदान पर फील्डिंग करती हुई शान स्ट्राइकर्स वाडेम क्रिकेट टीम. बढ़िया शॉट प्ले किया खूबसूरती के साथ लेकिन स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर तैनात और जब तक गेंद को फील्ड नहीं करते फिर से 1 रन मिल गया स्कोर में. 47 टोटल स्कोर. 47 रन चौथा ओवर मैच का चलता हुआ. ओह, अच्छी गेंद ब्लॉक होल में बोल्ड हुए उस गेंद पर और एक विकेट का पतन. 5वां विकेट वापस निकलता हुआ गणपति वॉरियर्स धारबांदोड़ा क्रिकेट टीम का. 47 लॉस ऑफ 5 विकेट. चौथा ओवर मैच का चलता. आने वाला मैच होगा सिटी थंडर्स उगेम और एसके जॉगिंग, ये 2 टीमों के बीच में. लेकिन उससे पहले देखना होगा ये प्री क्वार्टर फाइनल का मैच है. जो जीतेगा वो शाम को ठीक 4 बजे क्वार्टर फाइनल का मैच खेलेगा. नए बल्लेबाज मैदान पर. विष्णु बल्लेबाजी के लिए. फिलहाल मयूर आउट हुए सिर्फ 3 रन बनाकर. आज कुछ खासा प्रदर्शन इस मैच में नहीं कर सके. अच्छी शुरुआत जरूर हुई थी लेकिन उसके बाद सामने अच्छा कमबैक कर रही है गेंदबाजी में, गेंदबाजी के साथ, फील्डिंग के साथ. और देखना होगा फिलहाल अपने बॉलिंग मार्ग पर एक बार फिर से संजोत अगली गेंद लेकर एक सफलता दिलाते हुए और नए बल्लेबाज विष्णु स्ट्राइक एंड पर उनकी गेंदबाजी का सामना करेंगे. 47 टोटल, 47 रन 5 विकेट के नुकसान पर. अच्छी गेंद, इस बार थोड़ा सा दूर से खेलना चाहते थे. इस बार गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में ऑफ स्टंप कर छोड़कर. कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं. छोटे गेंद, इस बार हुक किया बड़े खूबसूरती के साथ. डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर. गेंद चली गई 6 रन के लिए और इन 6 रन के साथ गणपति वॉरियर धारबांदोड़ा क्रिकेट टीम के 50 रन पूरे हुए. 53 टोटल स्कोर 5 विकेट पर. चार ओवर का खेल समाप्त हुआ और 4 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 53, 5 विकेट पर 53 रन. विष्णु के बल्ले से पहला बड़ा शॉट 6 पर खुद के व्यक्तिगत और उनका बढ़िया साथ देते हुए रमेश 2 चौके 1 छक्का और नया ओवर. इस बार देखना होगा स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर सीधे हाथों में गेंद निकली. सफलता मिलती हुई इसी के साथ और एक 6ठे विकेट का मैदान पर आगाज होता हुआ सनेश को मिलती हुई सफलता अपने पहले गेंद पर. 53 रन 53 लॉस ऑफ 6 विकेट. गणपति और इस धारबांदोड़ा क्रिकेट टीम जो बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर. मुकाबला जारी. शान स्ट्राइकर्स वाडेम क्रिकेट टीम ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला. एक बार एक बड़े स्कोर की ओर कदम बढ़ा रही थी लेकिन कहीं ना कहीं वहीं पर रोक लगा दी. एक अच्छा ओवर जो
संजोत का रहा, जिस ओवर में सफलता दिला दी अपने टीम के लिए। और उसके बाद जो नया ओवर सनेश का, पहली गेंद पर सफलता और नए बल्लेबाज मैदान पर। गणराज सिंगल बना स्कोर में 54, टोटल स्कोर 54 रन 7 विकेट पर। 6 ओवर का मुकाबला, प्री क्वार्टर फाइनल का मैच। पहले 2 दिन में 2 टीम से दूसरा रन बिल्कुल जो कि मुश्किल था मैदान पर, क्योंकि डीप लॉन्गा बाउंड्री पर चौकोरनी फील्डिंग, तेजी के साथ गेंद को उठाते, फील्ड करते और एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क पर 57 टोटल स्कोर। स्वीप किया इस बार, फिर से ताकत नहीं, बिल्कुल गेंद के ऊपर लगे। स्क्वायर लेग पर, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर। 1 रन और मिला। ओवर की समाप्ति होती हुई 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 5वें ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 58, 58 रन 6 विकेट पर। स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर। 1 रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। विष्णु के बल्लेबाजी से निकलता हुआ यह शॉट एक सिंगल बना स्कोर में और इस 1 रन के साथ से स्कोर पहुंचा 59। विराज गेंदबाजी करते हुए इस अंतिम ओवर में, 6ठे ओवर का खेल मैच का चलता हुआ। बढ़िया शॉट आपाली पर लेकर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करते फिर से सिंगल मिला स्कोर के खाते में। दूसरे रन के लिए पलटे इस बार और अंपायर का इशारा थर्ड अंपायर की ओर। देखना होगा जरूर, जो कि हमारे तीसरे अंपायर जो कि असलम शेख, वो जांच करेंगे क्या हुआ। रनआउट के लिए अपील हो चुका है। तो नॉट आउट, बल्लेबाज सेफ है। 2 रन भी मिल गए स्कोर में, स्कोर के खाते में। आखिरी ओवर, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा शॉट होना चाहिए अभी भी गणपति वॉरियर्स धारबांदोड़ा क्रिकेट टीम को स्कोरिंग में। अब टम से बाहर, वाइड बॉल का इशारा। 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में। अंतिम ओवर का खेल अभी भी जारी मैच का। शांत साइकिल्स क्रिकेट टीम, वाडेम क्रिकेट टीम ने टॉस जीता। फील्डिंग करती हुई, बल्लेबाजी करती हुई गणपति वॉरियर्स। स्कोर हो चुका है 62, 62 रन। इस बार मिस टाइम कर बैठे अपने फॉलो थ्रू में, गेंद के नीचे विराज, कैच छूटा और कैच छूटे। दूसरे रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। नॉन स्ट्राइक रेंज पर क्या तीसरा बनेगा? हाँ बिल्कुल, जो कैच छूटा वहीं से लेकर एक शानदार थ्रो। अब मात्र बिल्कुल बढ़िया थ्रो। देखना होगा अंपायर का इशारा तीसरे रन में तो आउट। तो 2 ही रन मिलेंगे, जो बिल्कुल 1 ही रन नहीं था वहीं पर 2 रन मिल गए स्कोर में। और 2 रन के साथ से 64 टोटल स्कोर, 64 रन 7 विकेट पर। अंतिम ओवर का खेल, विराज गेंदबाजी करते हुए और मैदान पर नए बल्लेबाज जो कि और एक निकलते हुए। नए बल्लेबाज मयूरेश मैदान पर। देखना होगा गेंद फिर से फॉलो थ्रो में अपने गेंद के नीचे, और इस बार भी गेंद शायद दूसरे प्रयास में कैच को पकड़ा विराज ने। तो और एक विकेट वापस निकलता हुआ। 8वां विकेट, 64 रन 8 विकेट पर और एक नए बल्लेबाज मैदान पर। 64, लॉस ऑफ 8 विकेट। रुत्तम नए बल्लेबाज।
फुलटा स्वीप किया इसमें, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद, और गेंद चली गई स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर 6 रन के लिए। तो हमारे बड़ी देर के बाद नूर भाई को काम आ गया। लेग स्टंप पर ये गेंद, रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, नॉन स्ट्राइकर इन पर थ्रो किया है, देखना होगा, रन आउट और आउट, रन आउट हुए इस बार बल्लेबाज। तो 9वां विकेट। सत्तर रन टोटल, और तो टोटल 70 और टारगेट 71, 71 रनों का टारगेट। शुरू में 16 रन बनाए साहिल ने, बाद में आखिरकार जो कि गणराज ने बड़ा शॉट लगाया, 12 रन बनाए। गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो बीच में 3 विकेट चटकाए संजोत ने, वहीं पर वापसी की अपने टीम को, और विराज आखिरी ओवर में एक छक्का लगा। तो टोटल ये था लेखा जोखा 70 और 71, 71 टारगेट मैच को जीतने के लिए। बिल्कुल नूर भाई, आपका एक बार फिर से धन्यवाद। शायद पता चल चुका है कि 2 दिन के बाद आप जा रहे। बिल्कुल, लेकिन बहुत अच्छा जो कि इस टूर्नामेंट के साथ आपका साथ रहा है। और तुम्हारे जाने की वजह से ये टूर्नामेंट थोड़ा जो कि बिल्कुल पहला रखा है नूर भाई, क्योंकि मालूम है तुम जा रहे तो उससे पहले ये टूर्नामेंट रखा है स्टार बॉयज ऑफ कुरचुरेम ने। तो चलिए 71 का टारगेट और ओपनिंग जोड़ी मैदान पर निकलती हुई शान स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम की। बिल्कुल 2 दिन के बाद कुवैत जा रहे हैं नूर भाई हमारे। बिल्कुल यादें लेकर तो जाएंगे जरूर इस पूरे टूर्नामेंट के साथ। ओपनिंग जोड़ी मैदान पर 71 एक अच्छा टोटल है, लेकिन दोपहर के सत्र में मुकाबला है, कड़ी धूप निकली है, गेंद भी बड़ी तेजी के साथ बाउंड्री लाइन पर जा रही है, और अच्छी टीम है दोनों टीम, एक एक मैच को जीत चुकी है। मालूम है जीतने के साथ क्वार्टर फाइनल में प्रवेश होगा, तो देखना होगा क्या होता है इस मुकाबले में। 71 का टारगेट, टोटल 71, जो कि मैच को जीतने के लिए। ओपनिंग जोड़ी सनेश और सनेश के साथ बाबल जोरे जो ओपनिंग बल्लेबाजी में। पहला ओवर जारी रखते हुए बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाजी पर रमेश। पावर प्ले का ओवर काफी निर्णायक रहेगा इस मैच का, क्योंकि अच्छा टोटल है। अगर 6 ओवर की बात की जाए तो 12 रन के साथ से प्रति ओवर रन बनाने पड़ेंगे मैच को जीतने के लिए, और देखना होगा किस तरह से ये प्री क्वार्टर फाइनल का मैच इन दोनों के बीच में समाप्त होता है मैदान पर। बॉलिंग मार्ग पर रमेश कमेंट्री बॉक्स की ओर से सनेश स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइकर इन पर बाबल जोरे माफ कीजिए लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज स्ट्राइक इन पर।
पहली गेंद पर मिस टाइम कर बैठे, देखना होगा, लंबी दौड़ लगाई, गेंद से थोड़ा सा दूर और एक सिंगल बना स्कोर में। भाग्यशाली रहे बाबल जोरे, शायद ऑन साइड पर मिड विकेट पर, लेकिन बल्ले पर ऊपर लगी गेंद, 3 फील्डर लगभग थे लेकिन मौका नहीं बना। नो मैच लैंड में गेंद गिरती हुई और सिंगल के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ शान स्ट्राइकर्स वाडेम क्रिकेट टीम का 71 का टारगेट है। अच्छा टोटल है, फाइटिंग टोटल है, लेकिन मुकाबला दोपहर के सत्र में अगर कल की बात की जाए तो 3 मैच कल के दोपहर के सत्र में बड़े टोटल के हुए थे। 93 का एक मुकाबला था, 83 रनों का और 69 रनों का। तो दोपहर के सत्र में रन जरूर बने थे इस मैदान पर और वो देखना होगा क्या होता है। रमेश अपने बॉलिंग मार्ग पर राइट आर्म राउंड विकेट, अगली गेंद लेकर और सामने बल्लेबाजी पर सनेश। ओ बढ़िया शॉट, मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद चली गई, मिनी हेलीकॉप्टर शॉट, सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। बिल्कुल फिर से हमारे नूर भाई व्यस्त हो चुके हैं मिड विकेट बाउंड्री पर। 2 दिन के बाद बिल्कुल कुवैत जा रहे हैं नूर भाई, लेकिन उससे पहले ये यादगार सफर रहेगा आपके साथ। स्टार बॉयज ऑफ कुड़चुरम क्रिकेट टीम की ओर से 7वां पर्व म्युनिसिपैलिटी और पंचायत टीम हिस्सा ले रही है और आज के तीसरे दिन का ये मुकाबला। छोटी गेंद कट किया, इस बार ऑफसाइड पर, कवर पर फील्डर, लेकिन रन लेना चाहते थे, लेकिन जैसे देखा कवर पर फील्डर है, एक्स्ट्रा कवर पर अपने बढ़ते कदमों को रोका। 2 मैच आज शुरू के एक तरफी मुकाबले रहे थे दोस्तों, लेकिन उम्मीद है ये मैच आखिरी ओवर पर चला जाएगा। कोई संकेत नहीं, क्योंकि संदेह नहीं, बिल्कुल ये 2 अच्छे टीम है आमने सामने, तो मुकाबला अंतिम ओवर पर जरूर जाएगा। और बेहतरीन शॉट इनसाइड आउट, इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, लेकिन उतनी ही शानदार फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग, एक अच्छा शॉट और 1 रन पर संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। 7 पर खुद के सनेश नॉन स्ट्राइकर, इन पर बाबल जोरे स्ट्राइक पर 1 पर और बॉलिंग मार्ग पर रमेश। ओवर द विकेट लेफ्ट हैंडर के लिए एक 15-16 कदमों के रनअप के साथ अपने बॉलिंग मार्ग पर। अल्टी पल्टी सफल रहे, इस बार गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर से 6 रन के लिए। हमारे अब डीजे भाई दिनू वो भी हमारा साथ देना शुरू करेंगे इस मैच के बाद जरूर दिनू आपका भी साथ होगा, बीच बीच में सुमधुर संगीत, लेकिन एक आक्रामक शुरुआत मैदान पर शान स्ट्राइकर्स वाडेम क्रिकेट टीम की। 71 का टारगेट है सामने, पावर प्ले में 2 शॉट होने चाहिए थे और वो लगे बल्लेबाजी में, दोनों बल्लेबाजों की ओर से 1-1 छक्का। और फ्लिक किया, इस बार फिर से खूबसूरत शॉट, मिड विकेट से मारेगा पर नजाकत भरा छक्का, 6 रन के लिए। बिल्कुल ये शॉट के लिए भी परिचित है, जाने जाते हैं, बिल्कुल स्लॉट में गेंद मिली, इस बार उतनी जगह नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा खोद कर खेला शॉट, लेकिन ताकत थी, टाइमिंग था। मिड विकेट पर 6 रन और पहला ओवर एक बहुत ही शानदार शुरुआत शान स्ट्राइकर वाडेम क्रिकेट टीम की। स्कोर बोर्ड पर 20 रन बिना किसी नुकसान से, 20 विदाउट लॉस, पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद। गेंदबाजी में परिवर्तन, रुत्तम गेंदबाजी पर खुद का पहला पावर प्ले का दूसरा ओवर, एक अच्छी शुरुआत शान स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम की, बिना किसी नुकसान से 20 रन स्कोर बोर्ड पर। अच्छा शॉट बैकफुट पर जाकर गेंद को ड्राइव किया, इस बार पॉइंट पर मिस फील्डिंग, पहला रन, दूसरे का मौका देखना होगा, हाना हाना कर रहे थे, आखिरकार निकले अपने अपने छोर पर सुरक्षित, 2 रन जुड़ गए, 22, टोटल स्कोर 22 पर पहुंचता हुआ। 71 रनों का टारगेट है, 6 ओवर का मैच है,
लगभग 12 के साथ रन बनाने पड़ेंगे, लेकिन पहले ओवर में 20 रन बने तो रन रेट को ठीक ठाक कर गई ये ओपनिंग जोड़ी दोनों बल्लेबाज, जो कि सनेश और उन्हीं के साथ बाबल जोरे। छोटी गेंद, शॉर्ट आर्म पुल का शॉट, कैच का मौका, पहले विकेट का पतन होता हुआ गणपति वॉरियर्स धारबादोड़ा क्रिकेट टीम को मिलती हुई पहली सफलता। 22 लॉस ऑफ 1 विकेट, 22 रन एक ही विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज मैदान पर रॉजी, वन डाउन बैट्समैन, पिंच हिटर, एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी, बहुत अच्छे बल्लेबाजी, लेकिन कहीं ना कहीं सामने गणपति वॉरियर्स धारबांदोड़ा क्रिकेट टीम को सफलता की तलाश थी, क्योंकि पहले पावर प्ले के ओवर में अच्छी शुरुआत हो चुकी थी, रन भी बने थे और वहीं पर एक ब्रेक तो किया जरूरी थी, वहीं पर विकेट चटकाया गेंदबाज ने, रुस्तम ने अपने बॉलिंग मार्ग पर, और नए बल्लेबाज रोजी मैदान पर बल्लेबाजी के लिए। आगे निकले, शायद इस बार बल्ला छूटा, अपील हुआ। पहली गेंद का सामना कर रहे थे, एकमात्र विकेट सनेश, एक छक्का लगाकर 9 पर खुद के व्यक्तिगत, 2 छक्के के साथ बाबुल जोरे 13 पर। रोजी पहली गेंद पर शायद बल्ला हाथों से छूटा, लेकिन कोई नुकसान नहीं, कोई रन का सवाल नहीं। स्ट्राइक एंड पर एक बार फिर से सामना करते हुए रुस्तम की गेंदबाजी का। दो अंपायर मैदान पर असलम शेख, उन्हीं के साथ सदगिरी नाइक, हमारे साथ विराज तेंदुलकर स्कोरिंग की जानकारी बगल में, जो कि थोड़ा सा जो कि विश्राम जो कि ले रहे हैं सर नीलेश नाइक। छोटी गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर पुल किया गेंद को ऑन साइड पर, और जब तक मिड विकेट से आते गेंद को उठाते फील्डर, फील्ड करते, 1 रन मिल गया स्कोर में। 23 टोटल स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। रोजी ने अपना खाता खोला। कमेंट्री बॉक्स में सर हरीश काकोड़कर और मैं अशोक नाइक, आप सभी के साथ एक बार फिर से उपस्थित दर्शक, उपस्थित मान्यवर, इस टूर्नामेंट में आज के तीसरे दिन में दोपहर के सत्र में आप सभी का स्वागत कमेंट्री बॉक्स में से। फ्री क्वार्टर फाइनल का मुकाबला इन दोनों टीमों के बीच में, जो जीतेगा वो शाम को 4 बजे खेलेगा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। और रिवर्स का प्रयास, इस बार वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, 1 रन मिल गया स्कोर में। शान स्ट्राइकर्स वाडेम क्रिकेट टीम 71 रन टोटल, और उसका जवाब देती हुई मैदान पर। अच्छा टोटल है, शुरुआत भी अच्छी हो चुकी है। पहले 2 मुकाबले बिल्कुल एक तरफी रहे, निराशा हुई दर्शकों की, लेकिन ये मैच बिल्कुल अंतिम ओवर पर चला जाएगा, क्योंकि 2 अच्छे टीमों के बीच में मुकाबला। छोटी गेंद बैकफुट पर जाकर खेला, इस बार ऑन साइड पर, मिड ऑन पर फील्डर, थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में, लेकिन अपने आप को तुरंत संभाला और गेंद को जब तक फील्ड करते तब तक 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 14 पर अपने खुद के व्यक्तिगत बाबल जोरे, स्ट्राइक एंड पर रोजी बल्लेबाजी करते हुए, 1 पर रुस्तम बॉलिंग मार्ग पर, और स्कोर हो चुका है 25 रन 1 विकेट पर। अच्छी गेंद इस बार, बहुत अच्छा शॉट इस बार फिर से, थोड़ा सा जो कि उतना रूम नहीं मिला था, लेकिन हाना हाना कर रहे थे, दूसरे रन के लिए पलटे, खतरा लगभग था, बाल बाल बचे वहां पर बाबल जोरे नॉन स्ट्राइकर एंड पर। अगर थ्रो सटीक होता, अच्छा थ्रो होता, तो नॉन स्ट्राइकर एंड पर बिल्कुल जो कि संकट था रन आउट का। खेल इसी के साथ 2 ओवर का समाप्त हुआ, 27 पर पहुंचा दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद। टोटल स्कोर 27, लॉस ऑफ 1 विकेट 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद।
गेंदबाजी में परिवर्तन, मयूर गेंदबाजी पर, खुद का पहला, टीम का तीसरा। पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ। अब फील्डिंग में तब्दीली मैदान पर, दूर दूर दिखाई देती हुई फील्डिंग और सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज बाबल जोरे, नॉट स्ट्राइकर एंड पर रोजी और तीसरे ओवर की शुरुआत मैदान पर। मयूर गेंदबाजी पर अच्छी शुरुआत मैदान पर। दो अच्छे टीम, बैलेंस टीम है, ताकत समसमान है दोनों टीमों की और दोनों टीम कोशिश कर रही है कि क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करने की, लेकिन देखना होगा कौन सफल होते हैं। अच्छी गेंद इस बार फिर से थोड़ी सी ब्लॉक होल में, मैंने हेलीकॉप्टर शॉट खेलना चाहते थे लेकिन सही संपर्क नहीं था। विकेट कीपर तेजी के साथ आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते और रन की संभावना को समाप्त करते हुए। बड़ा शॉट बल्ले के बीचों बीच, मिड विकेट बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। गेंद चली गई डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। अच्छा शॉट, टाइमिंग था इस बार, थोड़ी सी लंबाई, शायद गेंद ऊपर उठी थी लेकिन लंबाई को पार कर सकी और 6 रन और मिल गए स्कोर के खाते में। बाबल जोरे के बल्ले से निकलता हुआ ये तीसरा छक्का। 33 टोटल स्कोर, 33 रन। अल्टी पल्टी इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, बाबल जोरे के बल्ले से निकलता हुआ एक शानदार शॉट, चौथा छक्का। 39 टोटल स्कोर, 39 पर पहुंचा। थोड़ा सा महंगा साबित हो रहे मयूर इस ओवर में, सामने जो रन चाहिए थे वो रन बन रहे हैं मैदान पर। मयूर बॉलिंग मार पर, बढ़िया शॉट इस बार ऑफ साइड पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, कोशिश बढ़िया थी, पहले बाउंस के बाद गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। अच्छी कोशिश थी लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के फील्डर की लेकिन बहुत दूर थे और चौके के साथ स्कोर पहुंचा 43 रन। अब इस ओवर के साथ थोड़ा सा मैच 60-40 का मैदान पर हो गया शान स्ट्राइकर्स वाडेम क्रिकेट टीम की ओर से। फिर से अल्टी पल्टी स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, फील्डर 1 रन मिल गया स्कोर में। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ा 44 रनों पर। एक महंगा ओवर समाप्त हुआ मयूर का। खेल इसी के साथ 3 ओवर का समाप्त हुआ और 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 44, 44 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीन ओवर का खेल बाकी, 18 गेंदों का और 18 गेंदों में मैच को जीतने के लिए 27 रन। थोड़ा सा हम जो कि जरूर आपके साथ जो कि बिल्कुल जो कि 3 ओवर में 45 थे जो कि, और जो कि 3 ओवर में 44, लेकिन बराबर बिल्कुल चल रही है ये टीम। लेकिन 3 ओवर और ये ओवर काफी महत्वपूर्ण होगा मैदान पर। ये 2 बैटर मैदान पर, 4 छक्के अब तक बल्लेबाजी में, 1 चौका बाबल जोरे, 3 पर रोजी उनका साथ देते हुए और बॉलिंग में और एक परिवर्तन, रुस्तम खुद का दूसरा, टीम के ओर से चौथा ओवर जारी रखते हुए। खेला गेंद को ऑन साइड पर, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर गेंद के पीछे देखना होगा रोकते हैं या नहीं। शायद ब्रेक लगाने की कोशिश जरूर 2 बार की लेकिन ब्रेक नहीं लगी और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए। 48 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर 1 विकेट पर। ये ओवर काफी निर्णायक है। इस ओवर में विकेट लेनी पड़ेगी गणपति वॉरियर धारबांधोड़ा क्रिकेट टीम को मैच में कमबैक करने के लिए, और अगर इस ओवर में 1-2 बड़े शॉट लगे तो मुकाबला 60-40 का हो जाएगा मैदान पर। टारगेट 71 का, स्कोर बोर्ड पर 48, 1 विकेट पर। और यॉर्कर लेन की गेंद फिर से
खोद कर खेला शॉट, अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, सिंगल बना स्कोर में, सिंगल के साथ 49 49 रन, एक विकेट पर। अच्छी शुरुआत जो कि बल्लेबाजी में 22 रन पहला विकेट, और उसके बाद ये दो बल्लेबाज रोजी बिल्कुल एंकर रोल निभा रहे हैं। अच्छी बात है, मालूम है सामने से बाबल जोरे बड़े शॉट लगा रहे हैं, तो रोजी सिंगल डबल के साथ उनको ज्यादा मौका दे रहे हैं अपने लंबे रनअप पर गेंदबाजी पर। उत्तम अगली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट, बेहतरीन शॉट, इस बार ऑफ साइड पर गेंद हवा में, कवर पर मौका कैच का, ये कैच छूटा दोस्तों, मैच ना आपके हाथों से छूट जाए। 50 रन इसी के साथ शान स्ट्राइकर वाडेम क्रिकेट टीम के 50 रन। यही बात कर रहे थे हम कमेंट्री बॉक्स में कि ये ओवर काफी निर्णायक है, इस ओवर में आपको विकेट लेना पड़ेगा, मैच में कमबैक करना पड़ेगा, लेकिन एक मौका छूटा एक्स्ट्रा कवर पर और मौके के साथ एक रन बनता हुआ 50 रन टोटल, 21 रन अभी भी दूर जीत से शान स्ट्राइकर वाडेम क्रिकेट टीम। बड़ा शॉट बल्ले के बीचों बीच मिड विकेट पर, यह मौका फिर से बना और इस बार एक शानदार बल्लेबाजी, बाबल जोरे 4 छक्के लगाए, 2 चौके अपने इनिंग में और दूसरा विकेट वापस निकलता हुआ मैदान पर शान स्ट्राइकर वाडेम क्रिकेट टीम का। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, शायद 36 रन बनाए जो कि अपने इनिंग में, 4 लंबे लंबे शॉट, 1 चौका जिसमें 36 पर खुद के व्यक्तिगत और दूसरा विकेट मैदान पर वापस शान स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम का। लेकिन तालियां तो जरूर होगी बाबल जोरे की बल्लेबाजी के लिए, बहुत ही शानदार इनिंग, मैच को बिल्कुल नजदीक ला चुके हैं, लेकिन क्रिकेट है, बात करना गलत बात होगी पहले कौन जीतेगा इस मुकाबले को। प्री क्वार्टर फाइनल का मैच है, जीतेगा वो खेलेगा शाम को 4 बजे, क्वार्टर फाइनल का मैच खेलेगा और नए बल्लेबाज मैदान पर मोहित रोजी का साथ देने के लिए। आने वाले इस ओवर के बाद 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी, 50 रन, 21 रन चाहिए अभी भी मैच को जीतने के लिए, मैच अभी भी बाकी है दोस्तों मैदान पर। आड़े बल्ले से कारपेट के साथ खेला, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर सिंगल मिला, स्कोर में 1 रन जुड़ गया, 51 टोटल जो कि स्कोर बोर्ड पर। स्ट्राइक पर रोजी, मोहित ने आते आते पहली गेंद पर अपना खाता खोला, 36 पर बाबल जोरे, उससे पहले सनेश 9 पर पहला विकेट, 22 पर और दूसरा विकेट, 28 रन की कीमती साझेदारी 50 पर और रोजी स्ट्राइक एंड पर सामना करते हुए रुस्तम की गेंदबाजी का। बड़ा शॉट बल्ले के बीचों बीच मिड विकेट से मारेका से बाहर, गेंद 6 रन के लिए। ये ओवर 2 बड़े शॉट लगे, एक कैच छूटा, एक विकेट भी मिला, खेल 4 ओवर का समाप्त हुआ और 4 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 71 रनों के जवाब में 57, टोटल स्कोर 57, 57 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। बारह गेंदों का खेल, 14 रन, 12 बॉल्स 14 रन, ऑप्टम से बाहर इस बार छोड़ा तो अभी भी 12 गेंदों का खेल और अब मात्र मैच को जीतने के लिए 13 रन, 1 रन, 58, 58 रन, 2 विकेट पर, 2 ओवर बाकी, अंतिम 12 गेंदों का खेल और मैच को जीतने के लिए 13 रन। शॉर्ट पिच गेंद, तेज गेंद, इस बार हुक करना चाहते थे, गेंद बल्ले के ऊपर से विकेट कीपर के हाथों में, साहिल गेंदबाजी करते हुए 16 रन। बल्लेबाजी में साहिल एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है, गणपति वॉरियर धारबांधोड़ा क्रिकेट टीम का, और गेंदबाजी में बिल्कुल एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर
बड़ा शॉट, बल्ले के बीचों बीच, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गगनचुंबी छक्का, 6 रन के लिए। इस शॉट के साथ मैच बिल्कुल ढीला हो गया मैदान पर। यह बड़ा शॉट लगा, बहुत ही अच्छा टाइमिंग था इस बार गेंद पर। मोहित के बल्ले से निकलता हुआ यह शॉट और स्कोर आगे बढ़ा 64, 64 रन, 2 विकेट पर 7 रन अभी भी दूर है शान स्ट्राइकर वाडेम क्रिकेट टीम। प्री क्वार्टर फाइनल का मुकाबला मैदान पर। छोटी गेंद, यह मौका बनेगा अपने पालतरों में गेंद के नीचे। फिर से मैच में थोड़ी सी हलचल दिखाई देती हुई मैदान पर आउट होकर वापस और तीसरी सफलता मिलती हुई गणपति वॉरियर्स धार बांदोड़ा क्रिकेट टीम को। नए बल्लेबाज मैदान पर। कट किया, कैच का मौका। शायद इस तरह से कैच छोड़ोगे तो मैच कैसा जीतोगे। ये दूसरा कैच छोड़ा, ऐसा बिल्कुल जो कि पल था इस मैच का। अगर ये कैच लेते नए बल्लेबाज पर आने वाले और दबाव बढ़ जाता, क्योंकि प्रेशर मुकाबला है और मैच अभी भी बाकी है। कवर पॉइंट पर कैच छूटा, 2 कैच छूटे, 2 रन भी बढ़ गए स्कोर के खाते में। 65 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। बड़ा शॉट, ये विनिंग शॉट मैच को फिनिश कर दिया। देखो कैच 2 छूटे वो महंगे साबित हुए। स्क्वायर लेग पर गेंद सी मारेका से बाहर और इसी के साथ ये मैच मैदान पर जीतती हुई शान स्ट्राइकर्स वाडेम क्रिकेट टीम। तो गणपति और धार बांदोड़ा, आपने भी बहुत अच्छा खेला। आने वाले टूर्नामेंट के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ले चलेंगे मैन ऑफ द मैच जो इस मैच का। और यहां पर हम आमंत्रित कर रहे हैं नरेश देसाई। नरेश देसाई सर आइए प्लीज। आपसे हाथों मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जाएगी और विराज मैन ऑफ द मैच इस मैच का। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, 4 छक्के 2 चौके जिन्होंने लगाए। लेफ्ट हैंडर बाबल जोरे मैन ऑफ द मैच। चलिए बाबल जोरे मैन ऑफ द मैच के लिए एक छोटा सा ब्रेक है दोस्तों, और उसी के साथ फिर से जुड़ जाएंगे जो आने वाले मुकाबले के साथ एसके जॉगिंग और सिटी थंडर के बीच में जो आने वाला मैच होगा। सिटी थंडर उगेम और एसके जॉगिंग, अगर दोनों टीम पहुंच चुकी है तो प्लीज आइए रिपोर्ट करें हमारे कमेंट्री बॉक्स से। बाबल जोरे मैन ऑफ द मैच।